Jai Hind everyone. Our today's topic is HCF, that is highest common factor. So this is the most important topic of this chapter. In this topic, firstly we will see the meaning or the definition of the HCF. Then we will study the different method to find HCF. Then we will study some practical application of HCF. So let's start. First of all, we will see the meaning of HCF. The greatest number which divide the two or more number without leaving a remainder is called the highest common factor, or in short HCF. The greatest number which divides the two or more numbers without leaving a remainder is called the highest common factor. मतलब हाईएस्ट नंबर जो गिवन दो या दो से ज्यादा नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर, उसे हम बोलेंगे HCF. फॉर एग्जांपल, consider the number 4 and 10 and we have to find the HCF. HCF mean highest common factor. ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं F से, फिर C, फिर H. F से पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर फाइंड करेंगे. C से फिर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे. देन कॉमन में से H से फिर क्या करेंगे, हाईएस्ट. पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, फिर कॉमन में से हाईएस्ट फैक्टर देखेंगे. ओके, सो we write all the factors of 4. So factors of 4 are 1, 2 and 4. And we know that what are the factors? The number which divide the given number completely. यहाँ पे 1 4 को completely divide करेगा, 2 can also divide 4 completely and 4 can also divide 4 completely. So these are the factors of 4. Similarly, so I write all the factors of 10. तो 10 के factors क्या है मेरे पास, 1, 2, 5 and 10. तो मैंने 4 के भी फैक्टर निकाल लिए, मैंने 10 के भी फैक्टर निकाल लिए. नाउ ये पार्ट मेरा पूरा हो गया F वाला. अब मुझे कहाँ पे जाना है, C पे. C मीन्स कॉमन, मुझे कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. सो व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स. देखो 1 दोनों में आ रहा है तो 1 कॉमन फैक्टर हुआ. देन 2 दोनों में आ रहा है तो 2 भी कॉमन फैक्टर हुआ. तो मेरे पास दो कॉमन फैक्टर्स आ गए, 4 और 10 के, 1 एंड 2. ठीक है, अब यहाँ तक मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया. F और C दोनों हो गए. अब मुझे H निकालना है. H मीन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब मुझे क्या निकालना है, हाईएस्ट. तो दोनों कॉमन में, कॉमन फैक्टर्स मेरे पास क्या है, 1 एंड 2. दोनों में हाईएस्ट क्या है, 2. दोनों में बड़ा कौन सा है, 2. दैट इज, सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2. सो HCF of 4 and 10 is 2. Okay, so this is a HCF. Now we will study the different method to find HCF. We have three methods to find HCF. First, by finding factors. Second, by prime factorization. Third, by division method. So one by one we will study each of the method. So first is HCF by finding factors. So in this method we have to write the factors of given number, then we have to find the common factors of given number, then we have to find the highest common factor of a given number, as we done in the previous example. For example, find HCF of 18 and 24. So हमें क्या निकालना है, HCF of 18 and 24 means the greatest number which divide 18 and 24 without leaving any remainder. ठीक है, तो इसे हमें करना है बाय फाइंडिंग फैक्टर्स. तो इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन नंबर्स है उन नंबर्स के हमें फैक्टर्स लिखने हैं. ठीक है, जैसे आई राइट द फैक्टर्स ऑफ 18 हियर. सो 18 के मैंने सारे फैक्टर लिख दिए, 1 2 3 6 9 एंड 18. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 18. सिमिलरली वी विल राइट द फैक्टर्स ऑफ 24. सो 24 के फैक्टर्स मेरे सामने 1 2 3 4 6 8 12 and 24. These are the factors of 24. So this part is done. F is done, means factor part is done. Now we have to find C. C means common factor. So common factor, एक तो 1 है दोनों में, 1 is common, 2 is also common, 3 is also common. Common जो दोनों में आएगा वो common होगा. ठीक है, and 6 is also common. So these are the common factors. Now I write these common factors. So common factor of 18 and 24 is 1 2 3 and 6. ठीक है, अब यहाँ तक का पार्ट हो गया, C तक का पार्ट हो गया. फैक्टर्स भी निकाल लिए, कॉमन फैक्टर्स भी निकाल लिए. नाउ वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट.
कॉमन फैक्टर। जो कॉमन फैक्टर है उनमें से हाईएस्ट कौन सा है? सो ऑब्वियसली हाईएस्ट फैक्टर इज 6, ठीक है। जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा? HCF होगा। सो HCF ऑफ 18 and 24 is 6. So this is a HCF by finding factors, ठीक है। अगर हमारे पास दो से ज़्यादा नंबर हो तो भी हम सेम ही मेथड फॉलो करेंगे, उसमें हम तीनों नंबर्स के फैक्टर लिख लेंगे और तीनों के कॉमन निकाल लेंगे, देन तीनों में से हाईएस्ट, देन कॉमन में से हाईएस्ट निकालेंगे, वो तीनों नंबर्स का क्या होगा? HCF। ओके, सो द सेकेंड मेथड इज HCF by prime factorization. So we know that what is the prime factorization? Finding out all the prime factors of given number, that is called the prime factorization. कोई भी नंबर जो होता है वो प्राइम फैक्टर से बना होता है। We can write any number in the product of prime factors, है ना, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो उसी को हम यूज करके क्या निकालेंगे यहाँ पे? HCF. So for example, find the HCF of 12 and 16. So we have to find the greatest number which divide 12 and 16 without leaving any remainder. So by prime factorization, we have to write the prime factorization of 12, then we have to write the prime factorization of 16. तो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आती है, हमने लास्ट वीडियो में की थी। अगर किसी को नहीं आती तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो। तो पहले हम करेंगे 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन। So while doing the prime factorization, we have to start from the smallest prime number, है ना। तो यहाँ पे 12 है, तो 12 को हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ पहले डिवाइड करेंगे, दैट इज 2। अगर वो 2 के साथ नहीं हो रहा, देन वी मूव टू नेक्स्ट नंबर। अगर वो 3 के साथ भी नहीं हो रहा, देन वी मूव टू नेक्स्ट नंबर, दैट इज 5, ठीक है। ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। और यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, आप वो अप्लाई कर सकते हो ये चेक करने के लिए कि ये 2 के साथ डिविजिबल होगा, 3 के साथ होगा, या 5 के साथ होगा या नहीं होगा, ये चेक करने के लिए। सो हियर इज 12, सो लास्ट नंबर इज इवन, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना। सो वी डिवाइडेड बाय 2, आई राइट 2 हियर एंड क्वोशिएंट हियर, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 2 और क्वोशिएंट यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है। अगेन 6 is divisible by 2, so I write 2 here and divided by 2, and quotient is 3, so I write here. Now 3 is a odd number and it is not divisible by 2, so we have to move to next number, that is 3, next prime number, that is 3। तो अब हम इसे 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3 1 is 3, तो क्वोशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। जब 1 आ जाएगा हमारे पास तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे। Similarly, we have to write the prime factorization of 16। तो मैं इसके सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड करूंगा इन सिमिलर वे। तो 16 2 के साथ डिविजिबल है, सो आई राइट हियर एंड क्वोशिएंट हियर 2 8 द 16। अब 8 भी 2 के साथ डिविजिबल है, 2 4 द 8, ठीक है। अब 2 फिर अब 4 भी 2 के साथ डिविजिबल है, तो क्वोशिएंट जहाँ पे लिखता है 2 2 द 4। अब 2 2 के साथ डिविजिबल होगा एंड क्वोशिएंट इज 1। अब जब 1 आ जाएगा वहीं पे हम क्या कर देंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन को स्टॉप कर देंगे। So now write the prime factorization of 12 here. So 12 is 2 into 2 into 3 into 1। तो मैंने 12 के सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। सिमिलरली मैंने 16 के भी सारे प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ओके, यहाँ तक पता चल गया। तो यहाँ तक तो हमें पता चल गया, फैक्टर्स तक हमारा काम हो गया, f तक हमारा काम हो गया। वी हैव फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन वो फैक्टर होता है जो दोनों में है। तो दोनों में कौन सा फैक्टर आ रहा है? 2। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर, है ना। सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर। 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 हमारे पास क्या हो गया? कॉमन फैक्टर हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर हमें कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आपको वो कॉमन फैक्टर लेना है जो कम बार रिपीट हुआ हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 2 बार रिपीट हुआ है और यहाँ पे 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 4 टाइम्स। तो हमें वो 2 लेना है जो कम बार रिपीट हुआ हो। तो कम बार किस में हुआ है? 12 में। कितनी बार? 2 बार। वो यहाँ पे आप लिख लो, ठीक है। तो 2 2 जा, आप उनको मल्टीप्लाई करके देखोगे, जो नंबर आपके पास आएगा वो HCF होगा। Okay, let's repeat. First of all, we have to write the prime factorization of given numbers. Here I write the factorization of 12, and here we find all the prime factors of 16.
then we have to write these factors like this: 12 is equal to 2 into 2 into 3 into 1, and 16 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 1. देन वी हैव टू फाइंड कॉमन फैक्टर जो दोनों में है। तो कॉमन फैक्टर 2 था, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, बट हमें कौन सा 2 लेना है जो कम बार रिपीट हुआ हो। ठीक है, तो 16 में 2 है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बट 12 में ओनली 2 टाइम्स, तो हम ये वाला 2 लेंगे। ठीक है, जो 12 में है। सो यहाँ पे 2 टाइम्स है, इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2, जो नंबर आएगा वो आपके पास HCF होगा। सो दिस इज द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। So next method is HCF by division. So in this method we have to divide both the numbers together by their common prime factors. Stop dividing when there is no common prime factor left. Find the product of the common factors to get the HCF. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो गिवन नंबर्स हैं उन्हें हम इकट्ठे ही लिखेंगे। जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में दोनों की फैक्टराइजेशन सेपरेटली की थी, 12 की अलग की थी, 24 की अलग की थी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को इकट्ठे लिखेंगे। वी हैव टू राइट बोथ द नंबर टुगेदर एंड वी हैव टू डिवाइड बोथ द नंबर्स विद द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मीन्स हमें कोई ऐसे प्राइम नंबर के साथ इनको डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, जैसे 2 कैन डिवाइड 12 एंड 18 ऑल्सो, तो दोनों को डिवाइड करेगा, तो हम 2 के साथ इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 18, हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे देखो 6 2 के साथ डिविजिबल है, बट 9 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। हमें वो नंबर लेना है, वो प्राइम फैक्टर लेना है, हमें वो प्राइम नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, अगर किसी एक को कर रहा है और दूसरे को नहीं डिवाइड कर रहा तो हम वो नहीं लेंगे। तो 2 के साथ नहीं कर सकते क्योंकि 6 डिवाइड हो सकता है 2 के साथ, बट 9 नहीं होगा। देन वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट प्राइम नंबर दैट इज 3। तो हम 3 के साथ दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। जो 6 है 3 के साथ भी डिवाइड हो सकता है, 9 कैन ऑल्सो डिवाइड बाई 9 कैन ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, है ना। सो वी कैन डिवाइड, सो वी कैन डिवाइड इट बाई 3। सो 3 के साथ डिवाइड करूँगा यहाँ पे 2 एंड इसे 3 के साथ डिवाइड करूँगा तो क्वेश्चन आ जाएगा 3। नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 and 3. So we cannot divide further as 2 and 3 do not have any common factor. 2 और 3 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम नंबर है। 1 के अलावा इनमें कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी नंबर नहीं बचेगा जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करे। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, अपनी डिवीजन को स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर लेफ्ट। नाउ to find the HCF, multiply these common factors 2 and 3. So HCF of 12 and 18 is 2 into 3 is 6. ठीक है, so 12 and 18 की जो हमारे पास HCF आएगा that is 6. 6 is the greatest number which can divide 12 and 18 without leaving any remainder. So this is the division method of finding HCF. Let us take one more example. Find the HCF of 25 and 27 and say if they are co-primes. So we know that the co-primes, we know that what are the co-prime numbers? That number which do not have any common factor other than 1. 1 के अलावा जिनमें कोई भी common factor ना हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, co-prime numbers. So how we can find whether the given numbers are co-prime, whether the given number are co-prime or not by HCF. So it is very simple. If the HCF of given number is 1, those numbers are co-prime number. If HCF is any number other than 1, then those numbers are not co-prime. Okay, so let's find whether 25 and 27 are co-prime or not by HCF. So here you can use any method to find HCF because no particular method is mentioned here. अगर यहाँ पे कोई हमारे पास मेथड मेंशन होता कि find HCF by prime factorization, find HCF by division method, then we have to do by that method. Okay,
If no method is mentioned, then you can do by any method in which you are comfortable. Okay. For example, I am going with the finding factor method. In that method, we have to write all the factors of 25. So I write all the factors of 25. Then I have to write all the factors of 27. So I write all the factors of 27. Then we have to find the common factor. So common factor of 25 and 27 is 1. So this is the highest one also. So HCF of 25 and 27 is 1. Okay. So if the HCF of two or more number is 1, then those numbers are co-prime numbers. Okay. If HCF of given numbers is 1, then those numbers are co-prime. So here 25 and 27 are co-prime. So now we will do some statement sums. So first statement sum is find the greatest number that divides 33, 44 and 55 without leaving any remainder. So we have to find the greatest number that divide 33, 44 and 55 without leaving any remainder. So the greatest number that divides 33, 44 and 55 is the HCF of these numbers. Okay, so you can find the HCF of these numbers by any method in which you are comfortable. You can find it by the finding factor, you can find it by prime factorization, or you can find it by the division method. So here I am using division method. In that method we have to write all the number together, then we have to divide these number with the common prime factor. Common prime factor means जो तीनों को divide करें. सो 2 के साथ तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, 3 के साथ भी नहीं हो रहे, 5 के साथ, 7 के साथ भी नहीं. सो 11 इज अ नंबर विच कैन डिवाइड all three numbers. So 11 is a prime number which can divide 33, 44 and 55. So I divide it by 11. Here is 3, here is 4 and here is 5. Now we can't divide further as 3, 4 and 5 do not have any common factor. 3 और 3, 4, 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. ये तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते. सो हियर वी स्टॉप द डिवीजन. सो दिस इज आवर HCF. So HCF of given number is 11. So 11 is the greatest number that divides 33, 44 and 55 without leaving any remainder. Second example is find the greatest number which divides 97 and 107 leaving 7 as remainder. यहाँ पे हमें क्या करना है, the greatest number, we have to find the greatest number which divide 97 and 107 और रिमाइंडर हमारे पास कितना बचे 7. ठीक है. तो इस केस में क्या करना है, जिसमें रिमाइंडर हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता हो, हम क्या करेंगे, उससे पहले ही उन नंबर में से माइनस कर देंगे. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास नंबर था 97, तो रिमाइंडर 7 था, हमने इसमें से 7 माइनस कर दिया, तो हमारे पास क्या बना 90. और यहाँ पे था 107 and we have to subtract 7 from this number and we get 100. ठीक है. अगर यहाँ पे रिमाइंडर कुछ और होता तो हम वो नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते. सपोज यहाँ पे अगर 5 होता, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द 5 फ्रॉम बोथ नंबर. अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तो हमें 7 तीनों में से सब्ट्रैक्ट करना होता. ओके. अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, अगर यहाँ पे 6 होता, देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द 6 फ्रॉम द गिवन नंबर्स. ठीक है. अब जो हमारे पास नंबर बचेंगे उनका हम क्या फाइंड करेंगे, HCF, द ग्रेटेस्ट नंबर which divide 90 and 100. Okay. Again you can use any method in which you are comfortable. Okay. So here I am using division method. So I write 90 and 100 together. ठीक है. अब मुझे ऐसे प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करना है जो दोनों को डिवाइड करे. सो 2 कैन डिवाइड 90 and 100 both. So I divided these number by 2. Okay. So here is 45 and after dividing 100 by 2 quotient is 50, so I write here. Now
50 is divisible by 2, but 45 is not divisible by 2. Then I have to move, then we move to next prime number, that is 3. Okay, 3 can divide 45, but 50 is not divisible by 3. Okay, so 3 so 3 cannot divide both number. Then we have to move to next prime number, that is 5. Now check with 5. So it is ending with 5, so it is divisible by 5, and it is ending with 0, it is also divisible by 5. So after dividing 45 by 5, quotient is 9, so I write here, and after dividing 50 by 5, quotient is 10, I write here. Now we can't divide further, as 9 and 10 do not have any common factor. 9 और 10 में कोई भी common factor नहीं है, तो इससे आगे हम इसे divide नहीं कर सकते. Okay, to find the HCF, just multiply these numbers. So HCF of given number is 2 into 5, that is 10. Okay, so 10 is a number, 10 is the greatest number that divides 97 and 107, leaving 7 as a remainder. जब हम इन नंबर को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 7 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा. Okay, so this is all about HCF. Now do practice of this topic as much as you can, as it is the most important topic of this chapter.